So hi class 11th, we are with hydrogen. We are with hydrogen. Okay. Now the next compound of hydrogen we are going to study, that is water. That is water. We are going to study water. Okay. So water you all know, H2O. Structure of water. Structure of water is bent structure. O H H. Okay. There are two lone pairs. एक लोन पेयर, दो लोन पेयर. ठीक है. एंगल इज 104.5 डिग्री. दिस इज नोन एज बेंट स्ट्रक्चर. बेंट स्ट्रक्चर और ऑल्सो कॉल्ड वी शेप स्ट्रक्चर. वी शेप है इसकी, ऑल्सो कॉल्ड एज वी शेप स्ट्रक्चर. ओके. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. सो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर यू ऑल नो. ज्यादा मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं. न्यूट्रल होता है. ठीक है. एम्फोटेरिक होता है. एम्फोटेरिक होता है. ठीक है. एम्फोटेरिक होता है. कनेक्ट एज एसिड, कनेक्ट एज बेस आल्सो. ओके. तो ये इसकी वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसका तुम सारे जानते हो. बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, यू ऑल नो अबाउट दिस वाटर. So mainly structure is important. Uses of water you can also write. Okay. Next compound is hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide. अगला जो compound है that I am going to discuss is hydrogen peroxide. We are discussing hydrogen chapter, तो hydrogen के compounds पढ़ रहे हैं. Hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide. Peroxide. So what is the formula of hydrogen peroxide? That is H2O2. Okay. This is hydrogen oxide. One oxygen more than normal water. So what would be the structure of hydrogen peroxide? Structure will be peroxide. जब भी आ जाएगा तो मतलब है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. ये याद रखना. Whenever there is peroxide, remember there is single bond between oxygen and oxygen. So the structure is O H and H. Okay. This angle is 95.4 degree. 90, I think 97.4 degree. Okay. This is the bond between oxygen and hydrogen is 147 picometer, 147 picometer, and this is 97 picometer. So this is the structure of peroxide. 97.4 अगर दिख रहा पढ़ा रहा हूं 147 147 picometer 97 picometer. So this is the structure of this. And now properties and uses. Properties and uses. So we will discuss about the properties and uses. Okay. So first properties, it is kept outside the sunlight, out of sunlight. It is kept out of sunlight. Out of sunlight. Okay. Generally it is kept in colored bottles. Colored bottles थोड़ा sunlight से बचाव करती हैं. Generally kept in colored bottles. Generally kept in colored bottles. Colored bottles. Okay. इसको colored bottles में क्यों रखते हैं? Because due to this reaction H2O2, that is hydrogen peroxide, it will combine with sunlight. Sunlight means HNO. HNO is the symbol for sunlight and form H2O plus oxygen. Okay. So now it is not hydrogen peroxide. It will become water. It will come in contact with sunlight. So it is kept this out of sunlight. Okay. Now जो भी substance oxygen दे सकता है, that can be used as bleaching agent. Bleaching agent. ओके. जो भी सब्सटेंस ऑक्सीजन दे सकते हैं दैट कैन बी यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट. ब्लीचिंग एजेंट मतलब है जो डर्ट को, कलर को रिमूव कर देता है. दैट कैन बी यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट. ओके. सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज एसिडिक इन नेचर. वाटर इज न्यूट्रल बट इट इज एसिडिक इन नेचर. इट इज एसिडिक इन नेचर. ये क्या करता है? ब्लू लिटमस को इट कन्वर्ट्स इनटू रेड. सो इट इज एसिडिक इन नेचर. तो जो सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर होते हैं दे कैन किल जर्म्स. जैसे अल्कोहल जर्म्स को मार सकता है. सो इट कैन बी यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, माइल्ड डिसइंफेक्टेंट. कीटाणु को मार देता है. एसिडिक मारते हैं. एसिडिक मीडियम में कई कीटाणु मर जाते हैं. सो इट कैन बी यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट. सो दिस इज मेनली हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर यू. ठीक है. इतना पढ़ना है इसका. मैं तुम्हें मेन स्ट्रक्चर होता है. ओके. नाउ द थर्ड कंपाउंड व्हिच आई एम गोइंग टू स्टडी इज हैवी वाटर. थर्ड कंपाउंड व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज हैवी वाटर. Okay. The third compound is heavy water. Heavy water. Okay. तो देखो वाटर का फार्मूला क्या है? H2O. इसमें कौन सा आइसोटोप? हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स. आई एम टोल्ड यू. प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. इसमें कौन सा है? प्रोटियम है. दिस इज सिंपल वाटर. Okay. And if isotope used is deuterium,
हाइड्रोजन है, तीन आइसोटोप है ना, दिस इज ड्यूटेरियम, तो उसको बोलेंगे हैवी वाटर, द वाटर इन विच आइसोटोप यूज्ड इज ड्यूटेरियम, इट इज कॉल्ड एज हैवी वाटर, और इसको जनरली D2O लिखते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O. ओके, दिस इज हैवी वाटर. ओके, दिस इज हैवी वाटर. एंड नाउ प्रेपरेशन देखो इसकी कैसे होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस से, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ नॉर्मल वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ नॉर्मल वाटर. ठीक है, सिंपल पानी है उसकी तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो क्या बन जाएगा 2H2, ठीक है, 2H2 प्लस O2, ठीक है, साथ में सम ट्रेसेस ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज आल्सो फॉर्म, D2O भी आ जाता है, सम ट्रेसेस ऑफ D2O इज आल्सो फॉर्म, तो इलेक्ट्रोलाइसिस बन जाता है. नाउ इसका यूजेस, इसका यूजेस आ गया, इट इज यूज्ड टू इन न्यूक्लियर, इट इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, रिएक्शन चल रही है, न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, स्पीड से जा रहे हैं, उनकी स्पीड को कम करने के काम आता है. अगर स्पीड कम नहीं होगी तो न्यूक्लियर रिएक्शन विल बिकम अनकंट्रोल्ड, सो ये स्पीड को कंट्रोल करता है, इट एक्ट्स एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. गॉट इट. वन थिंग व्हिच आई फॉरगॉट टू टेल यू, दैट प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide, preparation of hydrogen peroxide, preparation of H2O2. Okay, so first preparation is from sodium peroxide, it is prepared from sodium peroxide. Okay, it is prepared from sodium peroxide. Na2O2 ले लो, Na2O2 इसको ट्रीट कर दो H2SO4 के साथ, दिस इज सोडियम peroxide, इसको ट्रीट करोगे तो बन जाएगा H2O2 प्लस Na2SO4. so in this way from sodium peroxide we can prepare hydrogen peroxide. Second is from barium peroxide, so you take barium peroxide, formula है BaO2 8H2O, 8 water crystallization molecules are also attached with the barium peroxide, treat it with H2SO4, H2SO4 के साथ लगा दो, क्या बनेगा, this BaSO4 plus H2O2 plus 8 molecules of water. So again we have prepared the hydrogen peroxide from barium peroxide. So these are the two methods for preparation of hydrogen peroxide.